In class 10th, I am Simmi Sahu, your English subject teacher. First of all, I want to tell you about your syllabus. In prose, there are 11 lessons. First of all, first lesson is A Letter to God. Second, Nelson Mandela. Third, Two Story About Flying. Fourth, From the Diary of Anne Frank. Fifth, The 100 Races, first part. Sixth, The 100 Races, part second. Seventh, Glipsum of India. Eighth, Miss Bill the Otter. Ninth, Madam rides the bus. Lesson 10th, The Sermon at Benares. 11th, The Proposal. These are the lesson of prose. Then the lesson of poetry is Dust of Snow, Fire and Ice, A Tiger in the Zoo, How to Tell Wild Animals, The Ball poem, Amanda, Animals, The Tree, The Fog, The Tale of Castle the Dragon, for Anne Georgie. These are the lesson of poetry. Then in supplementary reader there are 10 lessons. First lesson is The Trump of Surgery. Second, The Thief's Story. Third, The Midnight Visitor. Fourth, A Question of Trust. Fifth, Footprints Without Feet. Sixth, The Making of a Scientist. Seventh, The Necklace. Eighth, The Hack Driver. Ninth, The Bholi. 10th, The Book That Saved the Earth. Now, in prose, first lesson is A Letter to God. I study you about the summary of the lesson. A Letter to God. The story A Letter to God by G.L. Fluence depicts unwavering faith of a farmer in God. Lencho is a hard-working farmer. He is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does every year. The field just needs some drop of water. He was hopeful for rain. To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop field. The damage posed a threat to the family's survival, as their entire livelihood was dependent on the year's produce. Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. Lencho, despite having worked day and night at the field, knew how to write and read, and thus decided to write a letter to God, explaining his situation and asking for help. He went to the town to post his letter addressed to God. The letter, on being noticed by the postmaster, at first amused him, but then motivated him to do something for the farmer, so as to keep his immense belief intact. He contributes from his salary and collect money from the colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. To his dismay, he could only collect 70 pesos, which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the deity. On having found the letter writer Lencho is not at all shocked, but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected. He writes another letter to God to send him the rest of the amount. He requested God not to send it to him by the mail because to him the post office employees were a bunch of crooks.
इसका हिंदी में एक्सप्लेन बता दें। ये कहानी ए लेटर टू गॉड भगवान में एक किसान की अटूट विश्वास को दर्शाती है। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान है। उसे विश्वास है कि उसकी जो फसल है वो इस बार भी बहुत अधिक मुनाफा देगी, लेकिन उसे एक हल्की बारिश की ज़रूरत थी। बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन रेंचो को आशा थी कि बारिश होगी। थोड़े समय के बाद बारिश शुरू हुई और जल्दी ही वो ओलावृष्टि में बदल गई। सारी फसल उसकी नष्ट हो गई। अब इस फसल के नष्ट हो जाने के कारण उसके परिवार के अस्तित्व पर खतरा हो गया, क्योंकि उसकी पूरी आजीविका वर्ष की उपज पर ही निर्भर करती थी। पूरा परिवार उसका बहुत ही निराश था, लेकिन उनको ये विश्वास था कि ईश्वर उनकी मदद जरूर करेंगे। खेतों में रात दिन काम करने के बावजूद लेंचो को पढ़ना लिखना आता था, यानी वो अनपढ़ नहीं था, वो लिख पढ़ सकता था। उसने मदद कर पाने के लिए पत्र लिखने के लिए सोचा। उसने सोचा कि मैं ईश्वर को पत्र लिखूंगा और ईश्वर मेरी मदद ज़रूर करेंगे। वो शहर गया और उसने एक पत्र लिखकर डाक पेटी में डाल दिया। डाकिये ने जब उस पत्र को निकाला तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने अपने अधिकारी को भी उस पत्र को दिखाया, लेकिन जब उस अधिकारी ने देखा कि उसको लेंचो को बहुत अधिक ज़रूरत है पैसों की, तो उसने अपने तरफ से कर्मचारियों से, अपने मित्रों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन वो उतने अधिक पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। केवल 70 पैसे ही इकट्ठे कर पाया और उसे इस एक लिफाफे में लपेट दिया और ईश्वर के उत्तर की तरह ईश्वर का उत्तर लिखकर उस पत्र को रख दिया। पत्र मिलने के बाद जो लेंचो था बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, बल्कि वो यह पता लगने पर कि राशि उसकी उम्मीद से कम आई है, वो क्रोधित हो गया। वह शेष राशि भेजने के लिए भगवान को एक पत्र फिर लिखता है और भगवान से ये अनुरोध करता है कि वो इस बची हुई राशि को डाक के माध्यम से मत भेजे, बल्कि उसे किसी अन्य तरीके से भेजे, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो बेईमान व्यक्तियों के समूह हैं। Then I will explain this lesson into Hindi. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला था, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। From his height, one could see the river, the field of ripe crop dotted with the flower that always promised a good harvest. इस ऊंचाई पर कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और पके हुए फसलों के खेतों को देख सकता था, जिसमें बीच बीच में फूल लगे हुए थे और हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or a list of shower. उस समय केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, इस धरती को मूसलाधार बारिश की या एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew the field initially, he had done nothing else but see the sky toward the north-east. यद्यपि उस सुबह लेंचो ने जो कि अपने खेतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने उस दिन कुछ भी कार्य नहीं किया, बल्कि उत्तर पूर्व दिशा के आसमान को देखता रहा। उसको ये लग रहा था कि उत्तर पूर्व दिशा से बादल उस बारिश करेंगे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू वी गेट सम वाटर वुमेन। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें कुछ बारिश प्राप्त होने जा रही है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड्स विलिंग। महिला ने कहा, जो कि भोजन बना रही थी, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस। और छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम कॉल कम फॉर डिनर। जब तक उस महिला ने उन लोगों को खाने पे नहीं बुला लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड।
भोजन करने के दौरान ही लेंचो ने जैसा कि भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ही ताजगीपूर्ण और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। वह व्यक्ति यानी लेंचो किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बौछारों का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, जब वो वापस आया तो उसने कहा, दे आर नो रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बादल से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि क्या है, ये नए सिक्के लग रहे हैं। बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 सेंट पीस, बड़े सिक्के जो है वो 10 पैसे के बराबर हैं, और जो छोटे सिक्के हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flower, draped a curtain of rain. बहुत ही संतुष्टि के भाव के साथ वह अपने फसल से भरे हुए खेतों को देख रहा था और उस पर बारिश की चादर बिछ रही थी, यानी वर्षा बहुत तेज हो रही थी, सब तरफ बारिश दिखाई दे रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी अचानक एक बहुत ही शक्तिशाली हवा चलने शुरू हो गई। एंड along with the rain very large stone began to fall, और उसके साथ साथ बारिश के बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly resemble new silver coin, पहले तो ये उसको चांदी के सिक्के दिख रहे थे। The boys exposing themselves to the rain, लड़के भी दौड़कर बारिश में चले गए। Ran out to collect the frozen pearl, उन बर्फ़ के मोतियों के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, तब उस लेंचो ने कहा कि अब मौसम बहुत अधिक ख़राब हो रहा है। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से बीत जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी व्यतीत नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, गार्डन, हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द वोल वैली। 1 घंटे तक बर्फ के टुकड़े यानी ओले घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, खेतों में और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो चुके थे। एज इट कवर विद सॉल्ट, जैसा कि ये ओलों से ढक गए थे। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कोई भी पत्ती पेड़ों पर बची नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का हृदय दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब वो तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड, वह अपने खेतों के बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों से कहने लगा। बच्चों, आज हम लोग यहीं तक एक्सप्लेन पढ़ेंगे, आगे वाला एक्सप्लेन कल बताया जाएगा।